جب 40 برس کی ہو گئی تو میرے سرکار کو عبادت کا ذوق بڑھا ہوا ہے. سرکار عبادت فرمانے کے لیے غار حرا میں پہاڑی میں تشریف لے جایا کرتے تھے, جس کو آج کل جبل نور کہا جا رہا ہے. سرکار اس پہاڑی پر چڑھ کر کے, اس پہاڑی میں ایک کھوہ ہے, اس کھوہ میں جلوہ افروز ہو کر کے اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے. میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا پیارے, میں نے اندازہ لگایا کہ غار حرا اتنی اونچائی پر ہے. اس وقت تو راہ بنا ہوا ہے, ہوٹل بنے ہوئے ہیں, کھانے پینے کی سہولتیں ہو گئی ہیں, مگر آج سے 1400 برس پہلے اس کا ماحول کیا رہا ہوگا, یہ پہاڑی کس طرح سے رہی ہوگی. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی اونچائی پر کیوں تشریف لے گئے عبادت فرمانے کے لیے. اور بھی مکہ میں تو پہاڑیاں ہیں, لیکن دیکھنے کے بعد صرف اندازہ یہ لگا, اور یہ بات صحیح ہے کہ میرے سرکار جہاں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے غار حرا میں, اگر وہاں سے دیکھا جائے تو کعبہ دکھائی دے رہا ہے. بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. میرے سرکار جب اس وقت جلوہ افروز ہوتے رہے ہوں گے تو کعبہ کی چوکھٹ تک دکھائی دیتی رہی ہوگی. اللہ اللہ, اس لیے میرے سرکار اس پہاڑی کو منتخب فرماتے ہیں. کعبہ کو دیکھ رہے ہیں, عبادت فرما رہے ہیں. 40 برس کا عرصہ گزر گیا ہے, آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ کھانے پینے کا سامان آپ لے کر کے جایا کرتے تھے, اور کئی کئی رات بھی نہیں عبادت فرمایا کرتے تھے. 40 برس کا عرصہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا, جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں وہی لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو حکم سناؤ کہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کریں, میرے توحید کا اعلان کریں, وحدانیت کا اعلان کریں. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ 40 برس کے بعد محمد کو نبوت ملی ہے. میں عرض کرتا ہوں, جملہ سنبھالو, قلم سنبھالو, تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکل لے پائے. نبی کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملتی ہے, بلکہ نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملتا ہے. نبوت ملنے کی بات کر رہے ہو تو نبی کی نبوت کب سے ہے پتہ نہیں لگا سکتے ہو. نبی کونین سے صحابہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہوئے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا, میں اس وقت سے نبی ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان نبوت پتہ لگا نہیں پاؤ گے. اعلان نبوت کا وقت تو ضرور معلوم ہے کہ نبی 40 برس کے بعد اعلان نبوت فرما رہے ہیں اور رب حکم دے رہا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی وحی لے کر کے غار حرا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے ہیں, اور جب حضرت جبریل نازل ہوئے تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, اقرا پڑھو, اقرا پڑھو. ایک جملہ میں اور عرض کرتا چلو پیارے, اقرا کے لفظ سے پہلی وحی آقا پر نازل ہو رہی ہے. یہیں سے پتا چلا کہ امت محمدیہ کے افراد کو پڑھنا چاہیے. آج ہم لوگ تعلیم سے کس طرح دور دکھائی دے رہے ہیں, ہم تعلیم کی طرف زور نہیں دے رہے ہیں. نبی کونین پر جو وحی کا پہلا لفظ نازل ہو رہا ہے, اقرا محبوب پڑھو. آقا فرماتے ہیں, مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہو, مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہو. آقا کریم نے جب یہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دبوچا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھر عرض کرتے ہیں, اقرا بسم ربک الذی, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. جیسے رب کا نام لینا تھا سرکار نے پڑھنا شروع کیا. اب حضرت جبریل علیہ السلام گئے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں, زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑھاؤ, کمبل اڑھاؤ. میرے جسم پر لرزہ طاری ہے, مجھے کچھ خشیت لگ رہی ہے, میں کچھ خوف سا محسوس کر رہا ہوں. اتنا سننا تھا کہ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑھا دیا اور عرض کیا, میرے سرتاج آپ گھبرائیں نہیں, آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, آپ بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں. حضرت خدیجہ نے سرکار کو لیا اور اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پھر گئی اور سارا ماحول بیان کر دیتی ہیں. حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا, اے کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی امت آپ کو نکال دے گی اپنے وطن سے, اور یہ جو کیفیت آپ بیان دے رہے ہیں یہ تو وہی نازل ہونے کی کیفیت ہے. آقا فرماتے ہیں, کیا میری قوم مجھ کو وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا, ہاں, ہر پیغمبر کے ساتھ سختی کی گئی ہے. یہ کہہ کر کے وہ خاموش ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب کچھ روز کے لیے وہی کا سلسلہ بند ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر جب دوبارہ وہی نازل ہوئی تو رب نے ارشاد فرمایا, محبوب اب اپنے اقارب کو, عزیزوں کو, رشتہ داروں کو مجھ سے ڈراؤ, اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرو, میری وحدانیت کا اعلان کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری قوم کی دعوت لی, اور دعوت لینے کے بعد سرکار نے دعوت کھلا دیا, اور کھلانے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں, میری قوم سنو, میں نے کس لیے تمہیں بلایا ہے. آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو, فلاح پا جاؤ گے. میں اللہ کا رسول ہوں. اس اعلان کا فرمانا تھا کہ ساری قوم کے لوگ چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں, ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میرے سرکار نے پھر دوبارہ دعوت لی, اور دعوت لینے کے بعد پوری قوم کو دعوت پیش کی, اور دعوت پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمایا, یہ قوم کیا تمہیں معلوم ہے میں نے کس لیے بلایا
है। कौम ने कहा किस लिए बुलाए हो? आपने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमे तैयबा पढ़ लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फलाह पा जाओगे। ये ऐलान करना था कि कौम फिर भाग रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं मगर कौम नहीं सुन रही है। मेरे सरकार ऐलान फरमा रहे हैं मगर कौम तवज्जो नहीं दे रही है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का से तिजारत करने के लिए तशरीफ बाहर ले गए थे। आपको रईस मक्का कहा जाता है। वो बाहर जा रहे थे और शाम के करीब पहुंचे। शाम हो गई थी, एक झाड़ियां पड़ी, उन झाड़ियों में एक गिरजा घर पड़ा। उस गिरजा घर के करीब आपने अपने गुलाम से फरमाया कि जाओ पूछ लो तिजारत का सामान रात का वक्त हो गया है वहां रख दिया जाए और ये पूरा तिजारती काफिला यहीं आराम कर ले। जब आपका गुलाम जाता है और जाने के बाद राहिब के गुलाम से मिलता है तो राहिब के गुलाम ने कहा नहीं, हम इजाजत नहीं दे सकते हैं। अगर तुम इजाजत लेना चाहते हो तिजारत के सामान को रखने के लिए तो चलो हमारे आका के पास। राहिब के पास खादिम आपका पहुंच जाता है गुलाम और उसने जाकर के बताया। राहिब ने कहा किस मक्का से तुम आए हो? जो खजूरों के झुरमुट में आबाद है। हाँ हाँ, जो दो पहाड़ियों के दरमियान में है। हाँ, किस मक्का से तुम आए हो? वही मक्का जिस मक्का में जमजम है। हाँ, उसी मक्का से तुम आए हो। उसने सारी बातों का जवाब दिया। कहा अच्छा जाओ तुम अपने आका को बुला लाओ। अब वो खादिम आया और उसने अर्ज किया हजरत अबू बकर इब्न क़हाफ़ा से कि आप चलिए, पादरी पहले आपको बुला रहा है, बिला आपके मशवरा और आपके पूछे हुए तिजारत के सामान को रखने की इजाजत नहीं देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। जैसे आप पहुंचे तब तक राहिब खड़ा हो गया और उसने आपकी पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद आपके हाथ को हाथ में ले लिया और उसने कहा ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा तुम मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहूं। तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक चौंक पड़े। आपने कहा अजीब मामला है, तुम अमीरुल मोमिनीन मुझे कहोगे? कहा खफा होने की जरूरत नहीं है। ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा इस वक्त मक्का में नबी मबूस हुए हैं और उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। उनका कलमा सबसे पहले तुम पढ़ोगे और उनके खलीफा सबसे पहले तुम बनोगे। अमीरुल मोमिनीन पहले तुम्हें कहा जाएगा। ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं बल्कि मेरे पास ये सारी निशानियां मौजूद हैं। हजरत अबू बकर का यह सुनना था कि एक अजीब हैजानी कैफियत हो जाती है। रात गुजर जाती है, सामान तिजारत रख दिया जाता है और फिर जब सुबह हुई तो आपने वही अपने तिजारत के माल को ताजरों को दे दिया और वहीं से वापस आ गए। जब आप मक्का में पहुंचे तो आपने सुना वाकई अल्लाह के हबीब ने नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमा दिया है। मक्का में सबसे पहले अबू जहल मिल गया और मिलने के बाद कहता है ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा आ जाओ आ जाओ, अभी तुम तिजारत से आ रहे हो? कहा हाँ। कहा तुम्हारे साथी मोहम्मद तो रसूल और नबी होने का दावा कर रहे हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया अभी मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ, अभी रास्ते के गर्दो गुबार में आता हुआ हूँ, अभी मैं फुर्सत पा जाऊँ, सुकून हो जाए फिर जायजा लेता हूँ। आप अपने घर गए, सारा सामान रखा और रखने के बाद घर वालों से पूछा बताओ तुम्हें मोहम्मद का पता है कहीं? घर वालों ने कहा हम उनका पता तो नहीं जानते हैं, अलबत्ता उन्होंने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान कर दिया है जिससे मक्का में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। आपने पूछा किसी ने उनको नबी माना कि नहीं माना? घर वालों ने कहा अभी हमें यह पता नहीं है कि उनको किसी ने नबी रसूल तस्लीम किया कि नहीं किया। अब आप पता लगाते हुए चले जा रहे हैं। पता चला कि इसी पहाड़ की तरफ आप तशरीफ ले गए हैं। मेरे आका फारान की चोटी पर तशरीफ फरमा है। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं। जैसे सरकार पर निगाह पड़ी आका ने हजरत अबू बकर को देखा, उठ करके खड़े हो गए और आका इरशाद फरमाते हैं अबू बकर आओ आओ, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अब हजरत अबू बकर आगे बढ़ रहे हैं और आका भी चंद कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं प्यारे, उम्मती के लिए नबी खड़े हो रहे हैं और देखो अगर उम्मती के लिए नबी खड़े हो जाए तो कैसी बात है, और नबी की ताज़ीम के लिए उम्मती खड़ा हो जाए तो गुनाह की बात कैसे कर रहे हो? हजरत रसूल कायनात अबू बकर इब्न क़हाफ़ा के लिए खड़े हो रहे हैं। और जब आप खड़े हो गए, सरकार अबू बकर सरकार के करीब पहुंचे तो आका ने हाथ में हाथ लिया, मुबारकबाद पेश की। फिर बातें अबू बकर इब्न क़हाफ़ा मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि जो नबी और रसूल होता है वो अपने नबूवत और रिसालत की कोई निशानी पेश करता है। तब तक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा क्या राहिब ने जो गिरजा घर में तुम्हें मेरे लिए बशारत दी हो काफी नहीं है मेरे रिसालत सुनना था? मेरे आका से हजरत अबू बकर ने अर्ज किया है मेरे आका अब रहने दीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सिद्दीक
عظیم شخصیت ہیں جو پہلی بار کلمہ پڑھ کر کے پہلے انسان مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ کرتا چلوں اے مسلمانوں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بات صرف سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں کلمہ پڑھنے کی تحریک کیسے پیدا ہوئی، علم غیب مصطفیٰ کو جان کر کے ان کے دل میں تحریک پیدا ہوئی کلمہ پڑھنے کی۔ سب سے پہلا انسان جو نبی کے علم غیب کو تسلیم کر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، آج کچھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو خدا کی عطا سے بھی نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام میں تمہارا داخلہ کیسے رہے گا؟ آؤ دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں۔ اب اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پر اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں۔ سرکار کے خلاف دشمنی ہو رہی ہے، گھر گھر میں اختلاف اٹھ جاتا ہے، باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، بیوی شوہر میں اختلاف ہو جاتا ہے، مگر میرے سرکار اپنی تحریک کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ مکہ والے بہت تنگ کر رہے ہیں، اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ راستہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بازاروں میں ابو لہب، ابو جہل، یہ شقی القلب مردود لوگ گھوما کرتے تھے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے، اے لوگوں، محمد کی بات نہ سنو، اگر ان کی بات سنو گے تو اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے، یہ اعلان کیا کرتے تھے۔ مگر میرے سرکار بھی رسالت کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ ایک روز میرے سرکار آبادی سے باہر تشریف لے گئے ہیں، آقا کریم باہر تبلیغ فرما کر کے آ رہے ہیں، شام ہو رہی ہے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی، اس کا بوجھ باز وزنی تھا، وہ کبھی اپنے بوجھ کو لے کر کے چلتی کبھی رکھ دیتی، پھر کبھی لے کر کے چلتی کبھی رکھ دیتی۔ تب تک میرے سرکار قریب پہنچ گئے، آپ نے پوچھا بوڑھی خاتون کہاں جاؤ گے؟ اس نے اپنے منزل کی نشاندہی کر دی، آقا نے اس کے بوجھ کو سنبھال لیا۔ اب سرکار چل رہے ہیں اور وہ بوڑھی عورت چل رہی ہے، میرے آقا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تاکہ بوڑھی عورت کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اس خاتون نے پوچھا، اے عرب کے شریف مرد، یہ تو بتاؤ کہ کس قبیلے سے آپ تعلق رکھتے ہو؟ آقا نے فرمایا میرا تعلق قبیلے قریش سے ہے۔ وہ پوچھتی ہے قبیلے قریش میں ایسے ایسے لوگ ہیں، بڑے اچھے ہو، یہ پوچھتے ہوئے وہ چلی جا رہی ہے۔ اس نے کہا اب ٹھہر جائیے۔ جب میرے سرکار ٹھہرے تو کہا رکھ دیجیے، یہی میرا غریب خانہ ہے۔ آقا نے اس کے بوجھ کو رکھا، میرے سرکار چلنے لگے تو اس نے کہا آپ مزدوری لے لیجیے۔ آقا نے فرمایا مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہا تھا تمہاری ضرورت تھی، میں نے تمہاری ضرورت کو حل کر دیا۔ اس نے کہا آپ بڑے اچھے شریف مرد ہو، عرب میں ایسے شریف کم پائے جا رہے ہیں جو دوسروں کی مدد اس طرح سے کر دیا کرتے ہوں اور اجرت نہ لیتے ہوں۔ آپ نے یہ تو بتایا کہ میرا تعلق قبیلے قریش سے ہے، قبیلے قریش میں ایسے شریف لوگ پائے جا رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ قبیلے قریش میں محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے ہیں جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اے عرب کے شرائع شریف مرد، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے بوڑھی عورت، بتاؤ کیا تم انہیں پہچان رہی ہو؟ اس عورت نے کہا میں ان کو پہچان کر کیا کروں گی، میں نے سنا ہے کہ ان کی بولی جو سن لیتا ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے، ان کا دین قبول کر لیا کرتا ہے۔ میں صرف اس لیے تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم بڑے شریف ہو اور نرم دل ہو، ان کے قریب نہ جانا، وہ بھی قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ تب تک آقا نے ارشاد فرمایا اے خاتون، جس مرد کے تعلق سے تم نے سنا ہے وہ محمد ابن عبداللہ میں بھی ہوں، محمد ابن عبداللہ تم بھی ہو، تو سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کرو۔ اللہ کے حبیب نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا۔ میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں، یورپ کے محققین نے جب مذہب اسلام کی تبلیغ کا یہ طریقہ دیکھا تو آج بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ مذہب اسلام کو جس طرح سے پیغمبر اسلام نے پھیلایا ہے، اگر اخوت و محبت اور رحم دلی کا وہ پیغام پیش کر کے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کی جائے تو آج بھی دنیا کے گوشہ گوشہ میں صرف اور صرف مذہب اسلام ہوگا۔ یہ میرے سرکار اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسلام کی مخالفت کرنے والے بھی بڑھتے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مخالفین حد سے زیادہ ہو گئے اور مار پیٹ دہاڑ شروع ہو گئی، حضرت بلال حبشی 8ویں نمبر پر ہیں جن کو بہت ستایا جا رہا ہے، خرید کر آزاد کیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ اسی موقع پر اسلام لائے جب ابو جہل نے سرکار کو پتھر پھینک کر کے مار دیا تھا اور آقا کے سر اقدس میں پتھر مس ہو گیا تھا، خون نکلا تھا۔ حمزہ باہر گئے ہوئے تھے، آتے ہیں اور بیوی نے بتا دیا کہ قبیلے قریش کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ محمد جیسے شریف اور امین و صادق کو ایسے ایسے لوگ پتھر پھینک دیں، ان کو ناموس کی کا بھی خیال نہیں آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار کے چچا حضرت حمزہ آگے بڑھے تھے، ابو جہل کو مارا اور اس کے سر کو پھوڑ دیا تھا، ہاتھ توڑ دیا تھا، بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد حرم شریف میں گئے، میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے، حرم شریف میں جانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ،
मैंने उस मरदूद से तुम्हारी चोट का बदला ले लिया है। आका फरमाते हैं चचा जान उस वक्त तक मैं न खुश हूँगा जब तक आपका कुफ्र न टूट जाए। आपने अर्ज किया है बेटा मुझे आपकी खुशी मंजूर है, अगर कलमा पढ़ने में खुश हो रहे हो तो लो मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। 40वें नंबर पर हजरत उमर फारूक आजम हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस तरह से इस्लाम के फरोग का सिलसिला आगे फैलता चला जा रहा है। जब सारे मक्का के काफिर तब परेशान और आजिज हो गए तो ये सब के सब हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास गए और जाकर के कहने लगे ए कुरैश के सरदार सुन लो, आपके भतीजे की बहुत सारी तहरीकें आगे बढ़ती चली जा रही हैं और वो हमारे बुतों को बुरा भला कहते चले जा रहे हैं, अपने दीन में लोगों को दाखिल करते चले जा रहे हैं। आप उनको रोकिए, अगर वो हमसे अरब के किसी हसीन जमील लड़की से शादी करने के लिए मांग करें तो हम तैयार हैं, अगर वो हमारी सरदारी चाहते हो तो हम सरदारी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें, हमारे माबूदों की बुराई ना करें। हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा बेटा सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते हुए चचा जान अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज ला कर रख दें और बाएं हाथ में चांद ला करके रख दें, जब भी मैं अपनी तहरीक से बाज नहीं आऊंगा, ये मैं तहरीक अपनी तरफ से नहीं चला रहा हूँ, ये रब का हुक्म है जो मैं तहरीक चला रहा हूँ और मैं इससे बाज नहीं आऊंगा। हजरत अली के बाप अबू तालिब कहते हैं बेटा ठीक है तुम अपनी तबलीग करते रहो, लेकिन अल्लाह की मशीयत देखो कि हजरत अली के बाप अबू तालिब को कलमा नसीब ना हुआ, वो कलमा पढ़ करके दुनिया से नहीं गए। बहरहाल हम हजरत अली के बाप अबू तालिब पर कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी और पूरी जिंदगी तक वो सरकार से मोहब्बत करते रहे। एक मोड़ ऐसा भी आया था कि शाबे अबी तालिब में सबके सब महसूर हो गए थे, यानी अरब के मक्का के कुफ्फार ने कहा ए सरदार कुरैश अबू तालिब अगर बाईकाट आप अपने भतीजे का नहीं कर रहे हैं तो हम सबके सब आपका भी बाईकाट और आपके सारे चादरियों और सारे खानदान का बाईकाट कर देंगे, हम लेन देन नहीं रखेंगे, तिजारत नहीं रखेंगे। चुनांचो शाबे अबी तालिब में 3 साल तक महसूर रहे और 3 साल के बाद फिर बाहर आए, उसमें हजरत अली के बाप अबू तालिब भी साथों साथ रहे। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, सीरतुन नबी का ये गोशा इसलिए पेश करता जा रहा हूँ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग में कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग फरमाते चले जा रहे हैं। अब सहाबा की एक अजीम शान जमात हो गई है, सरकार का कलमा पढ़ करके एक लहीम और शहीम भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और एक गरीब मुफलिस भी इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन ऐसी तंग जमीन कर दी है लोगों ने मक्का की सरजमीन पर कि आए दिन फसाद होता रहता है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज जलवा अफरोज है कि वही मक्का है, मक्का की सरजमीन से उम्महानी का घर है और हजरत उम्महानी के घर से सरकार की मेराज होती है। अब सीरतुन नबी का एक गोशा इधर आप देख लीजिए, मेराज पर चला जाता है, कभी इंशाअल्लाह ताला मेराज के मुकम्मल उन्वान पर बयान हो जाएगा। अब आप जिंदगी का ये गोशा मुलाहजा फरमाइए, जब मेरे सरकार मेराज शरीफ से वापस तशरीफ लाए और लाने के बाद आकाए करीम ने ऐलान किया कि मेरी मेराज हुई है, मैंने बैतुल मुकद्दस को देखा है, ये देखा वो देखा, जन्नत और दोज़ख को देखा, सारी चीजों को बयान करने लगे। तब तक अबू जहल सुना और सुनने के बाद ये कूदने लगा और कूदता हुआ ये गया, कहा वो देखो अभी तक तो मोहम्मद कहते थे कि मैं नबी ही हूँ, रसूल हूँ, और अब तो कह रहे हैं कि मेरे खुदा ने मुझको आसमान पर बुलाया और मैंने बैतुल मुकद्दस देखा, ये देखा वो देखा, वो तो सारी बातें बता रहे हैं। तब तक हजरत अबू बकर मिल गए और जैसे अबू बकर मिले तो अबू जहल ने कहा सुनिए जरा सुनिए, कहा क्या बात है? कहा आप जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं मोहम्मद ने क्या ऐलान किया है आपने सुना? कहा क्या ऐलान किया? कहा वो तो ऐलान कर रहे हैं कि मेरी मेराज हुई, मैं 7 आसमान पर गया, बैतुल मुकद्दस देखा, ये देखा वो देखा, तमाम चीजों के देखने का ऐलान कर रहे हैं। हजरत अबू बकर इब्न क़हाफ़ा फरमाते हैं अगर मेरे सरकार ने फरमाया तो सच फरमाया। जब आका सुनते हैं इस बात को तो कहते हैं अंता सिद्दीक, तुम सिद्दीक हो। उसी दिन से सरकार का लक़ब सिद्दीक पड़ गया हजरत अबू बकर का। और आप फरमाते हो अबू जहल, वो अबू जहल है और उसी तारीख से उस मरदूद का नाम अबू जहल पड़ गया, उसका नाम ही लोग भूल गए। अब हर जगह वो अबू जहल कहा जा रहा है और हर जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक कहे जा रहे हैं। मेराज की तस्दीक की है तो सदाकत का खताम मिल गया है और नबी के मेराज को झुठला दिया है तो जहालत की तारीकी में घिर गया है। ये नबी है, नबी के मुकद्दस ज़बान से जो बात निकल रही है वो हो जाती है। नबी ने फरमाया तुम सिद्दीक तो वो सिद्दीक है, नबी ने फरमाया तू अबू जहल है तो अबू जहल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सिद्दीक अकबर। ये इतना बड़ा जालिम था अबू जहल मरदूद, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया
आने के बाद कहता है मोहम्मद माद अल्लाह तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं लगती है, कुछ और सख्त जुमला कहा। तब तक मेरे आका के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक तड़प गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई हसीनो जमील नहीं है। जब इस बात को अबू जहल ने कहा था तो सरकार फरमाते हैं अबू जहल तूने सच कहा, और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया तो आका फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक तुमने भी सच कहा। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं और सहाबा या रसूल अल्लाह जब अबू जहल ने आपकी तौहीन की तब भी आप कह रहे हैं उसने सच कहा, और जब हम सब लोगों ने उसके तौहीन को झुठला दिया तब भी आप कह रहे हैं आपने सच कहा। आका फरमाते हैं सही है, मैं आईना हूं और आईना में जिसकी जैसी सूरत होती है वो देख करके वही बताया करता है। अबू बकर ने जब अपने आप को देखा तो अबू बकर को सदाकत नजर आई, हुस्न नजर आ गया। अबू बकर ने वो बयान दिया है, और अबू जहल ने जब मेरे अंदर अपने आप को देखा तो उसे जहालत की सूरत नजर आई, वो बयान दे गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब लासानी अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मरदूद अबू जहल है, आकर के सामने पहुंचा। उसने कहा मोहम्मद कहाँ? हाँ। कहा नबी हो? कहाँ नबी हो? कहा नबी हो? कहाँ? हाँ। कहा बताओगे मेरी मुट्ठी में क्या है? अब जरा जहन फिक्र हाजिर करके देखो। अबू जहल गोया सहन दे रहा है कि नबी वो होता है जो छुपी चीजों को जानता है। अबू जहल सरकार को नबी मानता ही नहीं था, उसका ये जहनो फिक्र है कि जो नबी होगा छुपी हुई चीजों को मानेगा। ये मोहम्मद मैं सिरे से तुम्हें नबी ही नहीं मानता हो, और मैं पूछना चाहता हूँ ये कैसे दज्जाल हैं जो रसूल को नबी भी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इल्म गैब नहीं है। आका करीम के सामने पहुंच करके कहता है बताओगे मेरी मुट्ठी में क्या है? आका ने फरमाया मैं बता दूं, ये जो शय तेरी मुट्ठी में वो खुद बता दे मैं क्या हूं। तब तक वो चौंक पड़ा, उसने कहा ऐसी बात कहा? हाँ। आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू जहल की मुट्ठी में रहने वाली चीजें बताओ मैं कौन हूं। तब तक उसकी मुट्ठी से आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने अपनी मुट्ठी को खोल दिया, कंकरियां जमीन पर गिर पड़ी। आका ने फरमाया देखा मैं कौन हूं? वो कहता है ए मोहम्मद माज़अल्लाह तुम्हारा जादू तो इन कंकरियों पर भी चल गया। ये कहता हुआ जालिम भाग जाता है। यही मरबूत अबू जहल है, रात की तारीकी है, चांद निकला हुआ है, आकर के पहुंचा और इसके साथ तमाम कुफ्फार हैं। मोहम्मद नबी हो? कहा हाँ। कहा जमीन पर तो तुम्हारे बहुत सारे मौजज़ात को मैंने देख लिए, क्या आसमान पर भी कोई मौजज़ा दिखा सकते हो? आका ने फरमाया हाँ। कहा दिखाओ। चांद निकला था, इसी चांद को इशारा सरकार ने किया, जैसे इशारा करना था कि चांद दो हिस्से में बट गया। आका ने फरमाया देखो सारे लोग देख रहे हैं। मुअर्रिख बयान करता है कि उसमें से 13 लोगों ने कलमा पढ़ा, वही इस्लाम में दाखिल हो गए, और ये जालिम कहता हुआ भागा। माज़अल्लाह मोहम्मद तुम्हारा जादू आसमान पर भी चल गया। उस वक्त 12:50 का वक्त हिंदुस्तान में था, और मालीबार का राजा ज़ूल था, वो अपने महल पर आराम कर रहा था। उसने देखा कि चांद 2 टुकड़ों में बट गया है। जब अरब के ताजरों से मुलाकात हुई और तस्दीक किया तो हिंदुस्तान की तारीख मिल रही है कि उस राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया था, और मेरे आका की बारगाह में पान और यही सुपारी और ये शायद सौठ और कुछ चीज तोहफे में भेजा था, और जिसको भेजा था उनसे कह दिया था कि अगर वो नबी होंगे तो तुम्हारी जबान भी समझेंगे, और ये चीजें कैसे खाई जाती हैं इसका ढंग खुद वो जान जाएंगे। तो जब ये ताजिर काफिला के साथ गए तो इनका नाम चंदन शाह था। जब ये गए और आका के सामने हाजिर हुए तो आका इरशाद फरमाते हैं, यहीं पर किताबों में कहा गया है फ़क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहो कुशल मंगल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चंदन कहो कुशल मंगल है। तब तक चंदन ने कहा कलमा पढ़ाइए। मेरे आका ने कलमा पेश किया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। अब जब पान को पेश किया गया तो सरकार ने ऐसे ही पान पर पान की जरूरियात को रखा जैसे यहाँ रखा जाता है। फौरन नबूवत की तस्दीक हो जा रही है, कलमा पढ़ लिया। उस वक्त किसने नहीं देखा था। प्यारे मेरे सरकार का मौजूदा है, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तू नबी की कुदरत का अंदाजा लगाना चाहता है, नबी की ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है। अरे नबी की ताकत का हाल तो यह है कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से होता आंखें नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब लासानी, खतीबुल हिंद, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। आंखें नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जिस नबी ने डूबे
डूबे हुए सूरज को पलटाया, चांद को दो टुकड़े किया, जमीन को हुक्म दिया, जर्रों को हुक्म दिया, हवा को हुक्म दिया, फजा को हुक्म दिया, समंदर को हुक्म दिया, सारी चीजें नबी के ताबा और फरमान है। फिर भी कहा जा रहा है नबी साहिब इख्तियार नहीं। और कैसी कैसी ताकत और कुव्वत मुलाहजा करोगे। यही अबू जहल है, इसने क्या क्या नहीं मुतालबा किया था काए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यही मरदूद है, मीटिंग करता है मक्का में और बड़ी भयानक मीटिंग करता है। ये जालिम इतनी भयानक मीटिंग करता है कि मक्का में लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं, तादाद बढ़ती चली जा रही है, मगर इख्तिलाफ और दुश्मनी भी बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने चंद सहाबा को बुलाया जिसमें आए लोग, और आने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा करो, तुम लोग ज्यादा सताए जा रहे हो, मक्का से छोड़ करके तुम हबशा चले जाओ। ये मुख्तसर जमात सहाबियों की जिसमें चंद औरतें हैं और चंद सहाबी मर्द हैं, ये सब के सब मक्का छोड़ करके और चुपके से निकल जाते हैं। हबशा पहुंचे और वहां जब पहुंचे तो हबशा के बादशाह ने बड़ी खातिर व मदारत की। नज्जाशी नाम था बादशाह का। इतनी खातिर की कि सरकार के उन मेहमानों को, सरकार की तरफ से जाने वाले उन मेहमानों को कोई दिल शिकनी नहीं हुई और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। अबू सुफियान बयान करते हैं कि उन दिनों हम लोग हबशा में गए थे तिजारत करने के लिए, हमको बुलाया गया और हम लोगों ने कोशिश की कि ये लोग जो आए हैं इन सबको मक्का वापस कर दिया जाए। तो हबशी बादशाह ने हम लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद हम लोगों से पूछा कि बताओ, हम बुलवाते हैं तो हजरत हमजा हैं, ये बुलवाए गए, सामने सरकार के लाए गए, यही तो है, सामने सरकार के इंतजार लाए जाते हैं। और जब सामने लाए गए तो नज्जाशी बादशाह ने पूछा, बताओ जिस पैगंबर ने तुम लोगों को कलमा पढ़ाया है और हुक्म दिया नेकियों का, उनकी सीरत क्या है। तो वो बयान करते हैं कि वो हमें हुक्म देते हैं कि नमाज पढ़ो, वो हमें हुक्म देते हैं कि ज़िना के करीब ना जाओ, वो हमें हुक्म देते हैं कि चोरी ना करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि झूठ ना बोलो, वो हमें हुक्म देते हैं कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, वो हमें हुक्म देते हैं कि पत्थरों की इबादत ना करो, एक खुदा की इबादत करो। इन सारी बातों को बयान करते चले जा रहे हैं। अब पूछा हजरत अबू सुफियान से, जब बाद में ये इस्लाम लाए, कहता है बताओ ये सब सच कहते हैं। कहा हाँ सच कहते हैं। कहा ये बताओ कभी उन्होंने झूठ बोला। कहा नहीं। कहा उन्होंने कभी सरदारी का दावा किया। कहा नहीं। हजरत अबू सुफियान कहते हैं कि जब कोई ऐब था ही नहीं तो हम लोग किस ऐब को कह दे कि है। जितना कुछ उन मुहाजिरों ने बयान किया हम सब लोगों ने उस सब की तस्दीक कर दी। अच्छा अब इधर देखो, मेरे सरकार ने फिर दोबारा और लोगों को हिजरत करने का हुक्म दिया। ये सब के सब दोबारा हिजरत करके चले गए। अब सरकार के हिजरत करने की बारी आई तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक मुझको मेरे मौला की तरफ से हुक्म नहीं होगा तब तक मैं हिजरत नहीं करूंगा, और जिस शहर की तरफ जाने की इजाजत होगी मैं उसी तरफ शहर की तरफ जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब यह सुना तो रात भर सोते नहीं थे, बल्कि सरकार के मकान के करीब चले आते और रात भर जागते रहते। एक रोज मेरे आका ने पूछा, अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इसलिए कि आपको कब हुक्म मिल जाए हिजरत करने का ये मुझे पता नहीं है, और आप निकले तो आपको मैं तन्हा नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं रात भर जागता रहता हूँ, रात की कुर्बानी देता रहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अब मीटिंग की जा रही हैं। एक भयानक मीटिंग की गई और सारे कुफ्फार मीटिंग करके आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास जाते हैं और कहते हैं सरदार कुरैश सुनो, अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। कहा क्या बात है? कहा मोहम्मद हमारे बुतों को हरदम बुरा कहते हैं, हमारे सारे बुतों के पुजारी कम होते जा रहे हैं, लोग उनका कलमा पढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने आपसे कई बार मुतालबा किया मगर आप अपने भतीजे को नहीं रोकते हो, अपने भतीजे को रोको, हम आपके सामने कह रहे हैं, वरना ऐसा ना हो कि पूरे कुरैश के खिलाफ हमारी तलवारें बाहर निकल आए। तब तक अबू तालिब अल्लाह के हबीब से कहते हैं, बेटा सुन रहे हो लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते, चचा जान मैं सुन रहा हूं, मगर हमारी भी बात सुन लीजिए कि ये कुफ्फार अगर आसमान से सूरज एक हाथ पर मेरे ला करके रख दे और दूसरे हाथ पर चांद ला करके रख दे और जब भी मुझसे कहे बाज आओ जाओ तो मैं ये इस तहरीक से बाज नहीं आऊंगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये मेरे खुदा की तरफ से ऐलान है, तब मैं कह रहा हूं और मैं कहता रहूंगा। कुफ्फाराने मक्का ने कहा, सरदार कुरैश अगर ये किसी हसीन जमील लड़की से शादी करना चाह रहे हैं तो हम वो भी तैयार हैं, अगर इनको कौम की सरदारी चाहिए तो हम वो भी तैयार हैं। आका ने फरमाया न मुझे कौम की सरदारी चाहिए न मुझे किसी चीज की जरूरत है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मैं हुक्म दे रहा हूं तुम खुदा की इबादत करो, एक खुदा को मानो, ये सब माबूद नहीं है, इनकी इबादत छोड़ो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तहरीक को पेश किया। कुफाराने मक्का मायूस होकर के चले गए। अब फिर दूसरी मीटिंग इन्होंने की और उनकी मीटिंग ये थी कि ऐसा किया जाए कि अबू तालिब और मोहम्मद और उनके जितने साथी हैं और उनके खानदान के जितने करीबी लोग ज्यादा हैं सबका बाइकाट किया जाए, किसी से न लेन देन किया जाएगा, न किसी से कुछ खाने पीने का माहौल रखा जाएगा, न
बोल चाल किया जाएगा। इस माहदे को तय करके ये लोग खाने काबा की दीवार पर दरवाजे पर ले जाकर के तहरीर लगा देते हैं, बाइकाट हो जाते हैं। आप और आपके सारे खानदान वाले, शाब अबी तालिब कहा जाता है उस मकाम को, उसमें आप महसूर हो गए। यहाँ तक हालत गुजर गई थी कि जानवरों के चमड़ों को भिगो करके और फिर उसको पका करके खाया जा रहा था। दरख्तों के पत्ते लाए जाते थे और उसको साग बना करके इस्तेमाल किया जा रहा था। इतनी दिक्कत पैदा हो गई थी। 3 साल का अरसा गुजर गया था। कुफारा ने मक्का ने बाइकाट किया था। शाब अबी तालिब में आप और आपके तमाम साथी और आपके तमाम हवारी और आपके तमाम मुआमिरीन सबके सब महसूर हैं। छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे। इन लोगों ने जो शर्त रखी थी, उस शर्त का मामला था, काबा की दीवार पर लटकी हुई थी वो शर्त, उसको दीमक ने खा लिया। तो किसी ने जाकर के बता दिया कि तुम सारे लोग अपनी चीजों को जाकर के देखो जो मुआहदा किए थे, उसको दीमक ने चाट लिया, वो शर्त खत्म हो गई। और उसमें एक ऐसे साहब निकल गए थे जिनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। उन्होंने देखा तो कहा अब मैं मुआहदे को खत्म करवा देता हूँ। खत्म करवाने के बाद आए और कहा सुन लो कुफारा ने मक्का, जो मुआहदा की करके तुमने खाने काबा की दीवार पर लटकाया था वो मुआहदा खत्म हो गया, जाकर के देखो अब निशान तक नहीं रह गया है। और जब निशान तक नहीं